welcome. You're watching the News Hour Agenda. I am Padmaja Joshi. The Varanasi court today drew a hard line on the survey at Gyanvapi Mosque. Over the last 3 weeks, repeated efforts to carry out a court-mandated survey that would determine what really is inside the mosque compound, whether there are any Hindu idols present in the basement, whether they have suffered any damage. That survey was consistently blocked by the Masjid Committee. Today, the court not only ordered that the survey will happen, but also made it clear that if the locks are not opened, break them. If anyone gets in the way, book them. Now that the repeated efforts to block has been put paid by the court, another bogey is now floated. That a court survey is but the first brick in a short road to demolition, and that riots are imminent. From political parties to clerics, the refrain was the same, that this judgment, this entire suit in fact, is politically motivated. It aims to carry out an agenda item of the BJP and RSS, that it's anti-Muslim, it's a dog whistle to majoritarian politics. But here's the thing. What people who are saying that another Babri is just round the corner are not telling you is that these arguments have been made in multiple courts and have been dismissed by multiple courts. The first claim, that the Advocate Commissioner is biased. The second claim, that non-Muslims are not allowed inside the masjid and hence the survey team is not allowed. And the third claim, that the survey itself is completely unnecessary. The court addressed and debunked all of these contentions. So is this new fear-mongering only a way to muddy waters now that the initial tactic, the initial plan at delaying has been defeated? जिस तरह से मुसलमानों को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, इसी तरह से यहाँ की मेजॉरिटी को ये दिखाया जाए कि जो मुसलमानों ने चीज़ें बनाई हैं तो इन चीज़ों का नाम ले करके उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए हो रहा है। न्यायालय में सभी विश्वास रखते हैं, सभी देशवासी, सभी भारतीय विश्वास रखते हैं और हम सब इंतजार कर रहे थे कि माननीय न्यायालय का जो फैसला आएगा उसके दिशा निर्देश के अनुसार सरकार कदम उठाएगी और वहां पर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने का काम हमारा है। और मुझे लगता है सौहार्द के साथ में वहां पर सर्वे भी होगा और सभी लोग उससे स्वीकार करेंगे, सभी धर्मों के लोग और खास करके जो हमारे मुस्लिम समाज के वहां पर जो कमेटी के मेंबरान हैं वो भी उस फैसले के साथ जाएंगे। So why does he think that another Babri is just around the corner? AIMIM Chief and Member of Parliament Asaduddin Owaisi will be joining us on the News Hour Agenda in just a while from now. Is this based on any fact or is this pure attempt at fear-mongering? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. But before that, joining me live on the debate, Sanju Verma, National Spokesperson of the BJP, Vishnu Jain, lawyer in the case. Joining me in the studio, Kalimul Hafiz, President of the AIMIM in Delhi, Shoaib Jamai, Islamic scholar, also with me in the studio, Maulana Sajid Rashidi, President of the All India Imam Association. Shoaib Jamai, डर का माहौल क्यों है? अब डर की बात की है कि सब डर गए हैं। इसमें डरने की क्या बात है जब कोर्ट में मामला है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का सर्वे है? पद्माजा जी, डर कौन रहा है? डर के बारे में तो आज सिविल जज के कोर्ट दिवाकर जी कह रहे हैं कि मेरी फैमिली डरती है हमारी सेफ्टी के बारे में। उत्तर प्रदेश में जिसके बारे में कहा जाता है इतनी चौक चौबंद शासन व्यवस्था है, मोदी जी का, योगी जी का राज है, वहां पे एक सिविल कोर्ट का जज डरता है, वहां उसकी फैमिली की सेफ्टी कंसर्न है, तो फिर आम आदमियों का क्या हाल होगा? आपने जो बहुत लोग अच्छी बेटियों बात का की। क्या हाल होगा? सोचने वाली बात है ना पब्लिक का क्या हाल होगा? कि तो ये दिस एक्सपोजेस द होल नैरेटिव कि यहाँ से उत्तर प्रदेश में सब कुछ पुलिस का सब कुछ ठीक है। Glad you brought that up because मौलाना साजिद रशीदी सुबह से कह रहे हैं कि सब डर गए हैं, सब बहुत डर में हैं। अब देखिए बस बाबरी मस्जिद की तरह इसको गिरा दिया जाएगा, हम सब के खिलाफ राइट्स किए जाएंगे। And like you yourself have said that if there is any one person who is scared today, it is the judge himself who said that just because I have given this
this judgment, I am under threat. Shoaib Jamai, who's threatening him? Isn't that a good question? मैडम यही तो मैं कह रहा हूं कि वो नाम सामने लेकर के आइए, कौन उनको डरा रहा है? कोई हिंदू संस्था डरा रही है क्या? कोई बजरंग दल डरा रहा है? कोई वीएचपी वाले? मैं कह रहा हूं, फिर बीच में आप बोल रहे हैं। देखिए ऐसी जैसे कि आप जैसे लोग डरा रहे हैं क्या उनको? आपने पूछा ना कौन डरा रहा है? विष्णु जैन कौन डरा रहा है? आप भी केस से जुड़े हैं। खुद वहां पे मौजूद था। कौन डरा रहा है? सर एक मिनट, 6 और 7 तारीख को किसी भी काशी के वासी से पूछिए, whatever was the usual practice of offering namaz, whatever the usual population was, 10 times more than that, the Muslims were there on the streets to offer namaz. नमाज से डर गए आप? नहीं सर, नमाज से कोई डरता है क्या? कोई डर नहीं रहा। जो आपने वहां पे नारे लगाए, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, भीड़ तंत्र के जो नारे लगाए, लोग नमाज कमिश्नर को डराने की कोशिश की, नमाज पढ़ेंगे, मंदिर में यहाँ से पूजा करेंगे, इसमें क्या बात है? ये डर नहीं तो और क्या है? पहले आप डर का माहौल क्रिएट करते हो, उसके बाद आप क्या कहते हो? प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? जो आप योगी शासन क्या कर रही है? और यूपी सरकार ने तो मैं कहता हूं बहुत संयम से काम लिया। पुलिस क्या कर रही थी वहां पे? यूपी सरकार ने बहुत संयम से काम लिया। क्या संयम से काम लाठी चलाते पद्मजा तो कहते हैं मुसलमानों को मार दिया, कमाल की बात है। मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया। कमाल की बात है। मापदंड कब तक चलेगा? अरे कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, आपके सामने प्रशासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। And by the way, this is said in the court Is judgment. this not a state failure, law and order failure? Sir, you Does definitely the should fear ask of the questions. civil court just does not exposes the very law and order situation of the UP? Okay, great. Will you agree that? You are accepting तो that there अगर was a लाठी threat? चार्ज होगा तो आप बोलेंगे I will immediately ask Sanju Verma, why was the survey team not given protection? But before that, you have to answer me, Mr. Jamai. Yes. क्या सर्वे टीम को डराया गया? आप मानते हैं? कौन इस देश में डरा सकता है? अरे डर उनसे पूछिए जो जस्टिस अरे लॉयर जो थे। आदमी आपके सामने बैठा है वो खुद जो- बोल रहा है जो कि justice भीड़ ने डराया। जस्टिस लॉयर थे, उनको डराया गया है। अरे भाई आप उनसे पूछिए जो मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं मुझे डर लगता है, उनको डराया जाता है। संयम बरता। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जो सेक्रेटरी है वो कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है। Okay, this is इन्वेस्टिगेट होगा तब कहेंगे कि देखिए सरकार ने हमारे कमाल का okay. This is a serious charge that on the one hand you are threatening and then you are saying हम ही डरे। डरा के कह रहे हैं हम डर गए। तो ये मतलब पहले से प्लानिंग करके बैठे हैं क्या? सर मैं आपको कोर्ट ऑर्डर मैं आपको क्या है आपके दिल में? मिस्टर जमाई आप बताइए पेंडोरा बॉक्स खोलिए। निकल नहीं रहे, आपको 1 बजे टाइम है नमाज पढ़ने का, उसके बाद आप क्यों नहीं निकले? आप चाहते हैं कि लोग यहाँ से हम वहां पे जाकर के नारे लगाए और आप फिर यहाँ से लाठी चार्ज हो, फिर माहौल खराब हो? आप चाहते हैं? लाठीचार्ज नहीं हुआ ना नहीं चाहिए था। जब आपको पता है सर्वे चल रहा है, इतनी भारी तादाद में गए क्यों बोला वहां के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कि गला बिकट जाए तो सर्वे नहीं होने देंगे? क्यों बोला? बताइए, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ने दे रहे भाई? मस्जिद नमाज के लिए है ना? wait a second. जुम्मे की नमाज। इसीलिए कि आप 1 बजे नमाज पढ़ के निकल जाओ। आप निकल नहीं रहे हो। Shoaib Jamai, first of all, let's set a few facts straight. Nobody stopped anyone from offering namaz. But the court had said that this survey must take place and on the 10th of May, the report must come in front of us. What happened? Let me quote to you कि judgment में क्या बोला गया है. Here is what the court judgment says. 7 मई 2022 को निरीक्षण के समय एडवोकेट कमिश्नर को प्रवेश करने से रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के सदस्य परिसर में खड़े हो गए जो पहले से छिपकर बैठे थे। यह बताया जा सकता है कि नमाज के बाद केवल 1 या 2 व्यक्तियों को वहां रहने की अनुमति है। मौलाना साजिद रशीदी, 1 or 2 people are allowed। लोग छिपकर बैठे थे और जैसे ही सर्वे टीम आई उनके ऊपर हमला किया गया। डर कौन रहा है सर और डरा कौन रहा है? कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है? मौलाना साहब, मतलब आप कहना चाहते हैं योगी जी के राज में यहाँ से कानून व्यवस्था खत्म, हिंदू डर रहा है, हिंदू खतरे में है मोदी जी के राज में, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, दूसरी सरकार आ जाएगी, उसमें तो हिंदू सुरक्षित हो जाएगा ना। अभी आपको राज पता चलेगा। अभी आपको ताजमहल में निकाला बाहर, नहीं ताजमहल में बेइज्जत होकर निकला ना। जाके पीएचडी कीजिए, आप पीएचडी कीजिए, एमए कीजिए, कोर्ट ने आपको कहा पीएचडी करके आइए, एमए करके आइए, रिसर्च करके आइए। again before this degenerates, let me शाहीन बाग में भी आपको बेआबरू होकर अरे सर आप अभी सब भी बेइज्जत करके निकालेंगे, ताजमहल से भी बेइज्जत करके निकालेंगे। here's the thing देखिए, ये this language is not okay। यहाँ किसकी इज्जत और बेइज्जती की बात नहीं है।
The question is of justice. And the question is of whether you are allowed to have a legal Justice recourse. not is a nuisance. आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं It's सर? a बेइज्जती nuisance. कल को ये बोलने लग जाएंगे कि आपका सर्वे से बेइज्जती हो गई, देखा आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ गया. This is not पद्मा जी, okay. it's a nuisance. It is about law. कोर्ट का ऑर्डर न्यूसेंस है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि अब 1991 के बाद का जो एक्ट है वो अपहोल्ड रहेगा, और यहाँ से अब अयोध्या के बाद कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा, और उसके अगेंस्ट एक मिनट पद्मा जी, कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा, काशी और मथुरा की बात नहीं होगी। कोर्ट का ऑर्डर ताजमहल का माना तो इसी हाई कोर्ट का 21/4 का ऑर्डर क्यों नहीं मानता? आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना? मैं तो मानता हूं। अयोध्या के टाइम पे कोर्ट ने नहीं कहा कि आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि यहाँ से उसको क्यों नहीं मानते? Okay. काशी और यहाँ से मथुरा की बात You know, नहीं होगी। gentlemen, Shoaib साहब, you know, Supreme Court ने कहा Mr. कि Jamai, आप Mr. इसको Jamai, रोक Mr. Jamai, दीजिए, I will, please. Mr. Jamai, I will request. इन्होंने आपके चैनल में क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा काशी मथुरा की बात नहीं होगी? पैरा बताइए, पैरा बताइए, बिना फैक्ट की बात मत करिए। डोंट प्ले। पैरा बताइए, पैरा बताइए। आप शोएब लोगों जमाई के साथ कि मत सुप्रीम खेलिए, कोर्ट इस ने देश के कौन से साथ मत पैरा में खेलिए। बोला? Okay. नहीं तो Don't बोलिए। play with the future. ऐसा नहीं बोला सुप्रीम Don't कोर्ट। play with the future of this Jamai, country. Mr. Jamai. Don't play with the aspirations of the youth of this country. Mr. Jamai, just a second. I will request your silence. I will request You are silence to making say this one thing. country as a- Okay, what Mr. sort of Jamai, hooliganism? Mr. Jamai and Vishnu Jain. Here's the thing. You cannot block people and say कोर्ट मत जाओ नहीं तो दंगे हो जाएंगे, कोर्ट मत जाओ नहीं तो देश में वैमनस्य फैल जाएगा, कोर्ट मत जाओ नहीं तो बाकी क्या कोर्ट में सोचेंगे. ही था ना मामला Sir, अयोध्या I am sorry. This is the kind of logic which people say. अरे बोलो मत, चुप रहो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे. अरे इट इज द राइट ऑफ पीपल टू गो टू कोर्ट. जब कोर्ट में तो बाबरी कोई मस्जिद सेकंड, क्यों तोड़ा? कोर्ट में कोर्ट जब में था ना ताजमहल, मामला। कोर्ट महल में जब कोर्ट में सर कोर्ट में जब ताजमहल का मामला फेंका जाता है, देन यू आर लाइक वाओ अमेजिंग. बट वही कोर्ट का जजमेंट जो अप्रैल का आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, यू आर लाइक न्यूटन न्यूसेंस, वाटर न्यूसेंस. जो आपको पसंद आए, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू. इलाहाबाद हाई कोर्ट जब आपको कहे कि बाहर निकल जाओ, हम नहीं एंटरटेन करेंगे, अप्लॉज. इलाहाबाद हाई कोर्ट कहे सर्वे कराओ, न्यूसेंस, नहीं करने देंगे. मौलाना साहब, कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है? पद्मा जी, देखिए, आपको याद होगा पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बाहर आए जिन्होंने कहा कि जुडिशरी को जिस तरह इरगमाल किया जा रहा है और जिस तरह से उनको हाईजैक करके काम कराया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है. फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज बाहर आए, उन्होंने कहा कि देश की सिचुएशन ऐसी है कि इस देश में रहना भी मुमकिन नहीं है. फिर आज एक जज ने कहा कि मुझे मेरी फैमिली और मेरी माँ, मेरी बीवी मेरे लिए मुझे अनसेफ महसूस कर रही है. अब मुझे आप ये बताइए, मोदी है तो मुमकिन है या योगी है तो मुमकिन है, ऐसे में जजों को इस तरह की बातें करना, ये किस पर जाता है? मोदी जी पर जाता है, योगी जी पर जाता है? कौन डर रहा है? संजू वर्मा. और कौन बात कर रहा है कि मुसलमान संजू वर्मा, देश में बताइए. ये कर देंगे और मुसलमान देश में वो कर देंगे, और मुसलमानों से 13% लोगों से 80% लोगों को डराया जा रहा है. ये तो आप कह रहे हैं 13% लोगों मैं से नहीं कह रही कि 80% लोगों को डराया 13% जा रहा है. 80% को डरा रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं. बट चलिए, संजू डरे वर्मा हुए को तो विष्णु जैन है, साजिद रशीदी डरावा नहीं है. होता तो मैं डरे चाहता हुए ही विष्णु नहीं, जैन मैं है. सिक्योरिटी मांगता, मैंने तो कुछ ये जो मांगा ही बार-बार नहीं है. कोर्ट भागते कहां हैं, डरा हूं मैं? डरे हुए तो ये मुझसे हैं. ज्यादा तो डरे हुए आप हैं, जो आपके समाज के ये लोग वहां पे डरे आके हुए खड़े हो गए. ये बार-बार कोर्ट भागते हैं. आप मुझे बताइए, आपको पता होना चाहिए डर क्या होता है. जैसे डर ताजमहल क्या होता के है? लिए, आपके सामने जैसे ठोक के बात ताजमहल कर रहा हूं, के लिए, ये डर होता है. जैसे आपके सामने ताजमहल ठोक के के पूरे लिए facts रख रहा हूं, एक ये डर नहीं PIL होता डालने है. वाले को आंखों में फटकार आंखें मिला लगाई के है. बात कर रहा हूं ऐसे और लोगों को करता फटकार रहूंगा क्यों नहीं अपने लगाई जीवन के जाती? आखिरी सांस तक. ऐसे लोगों को डरा नहीं है. मैं विष्णु शंकर जैन में मेरी पूरी लीगल टीम पूरी मजबूती से ऐसे अपने लोगों को जीवन के फटकार लगा के भगा देना Okay, चाहिए. let Sanju Verma answer. Let Sanju Verma आप कुछ भी answer. कर लो सर, Let आप Sanju- कुछ भी कर लो, हम तो लीगल लड़ाई लड़ेंगे. आप कुछ भी कर लो, स्टूडियो में पूरे डरा रहे हैं तो 13% भी आ बाहर जाए, जाते होंगे. 18% भी रोड पे आ जाए, तब भी अकेले खड़े होकर लीगल लड़ाई लड़ूंगा. चैलेंज करता हूं आपको रशीदी. सर, और बाहर आपके अंदर इतना दम है ना, तो आप आओ मुकाबला करो. Just a कोर्ट के पटल second. पे. Just a second. नहीं, Sir, पता sir, है, एक second. No, ये Mr. स्टूडियो में Jamai. डरा रहे हैं अगर Mr. आप, Jamai. तो बाहर रोड पे क्या कर Mr. रहे हैं? Jamai, मुसलमानों के साथ कितना खतरा है? कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है? Can be मत seen डराइए from the भाई, डर लगता है fact. आपसे. कौन डरा रहा है? मत Can be seen डराइए. from the अच्छी fact बात. कि Majority दो से minority डर रही है.
दो बार सर्वे किसने रोका ये सब जानते हैं, 2 बार सर्वे किसकी वजह से रुका ये भी सब जानते हैं। संजू वर्मा। Padmaja, I have been waiting for 17 minutes. I don't want to be interrupted for at least 60 seconds. I quickly want to make a couple of points. You know, बार-बार एक argument दोहराई जाती है from the pro-Gyanvapi lobby, which does not want a videography. They say, even Asaduddin Owaisi, who will be on your show, he said in a few minutes, he said that this is against the Places of Worship Act 1991, Section 3. Let me just ask, having a survey of or videography done of the base, how does that change the character, the religious character of Gyanvapi Mosque? All that Section 3 says is the religious character of Gyanvapi should not change. But who is to decide whether the religious character is only that of Gyanvapi Mosque? Is it only that of Gauri Shringar Temple? Is it a mix of Gyanvapi Mosque plus Gauri Shringar Temple? The religious character of Gyanvapi is still out in the public domain for a debate. Point number 1. आप एक तरफ कहते हो हम कोर्ट पर विश्वास रखते हैं, then Allahabad High Court said 22 rooms of Taj Mahal will not be open. You guys erupted with joy and said Allahabad High Court ने बढ़िया जजमेंट दी है। जब वही Allahabad High Court ने ये कहा 26 अप्रैल 2022 को upholding the Varanasi Civil Court that yes, videography should be allowed, तब आपने कहा हम Allahabad High Court की जजमेंट नहीं मानते। That means you do not believe in rule of law. You believe only the law as long as it suits your narrative. And I will end in 20 seconds by saying one more thing. There is the Ancient Monument and Archaeological Sites Act of 1951 and 1958. Both these acts say that Gyanvapi is an ancient monument and also an archaeological site. And hence, videography, यदि कोर्ट कहती है तो होनी चाहिए. You cannot stop that. And there is the famous Deen Ahmed versus the Secretary of State case of 1936. He said Gyanvapi Mosque, the land, the court, the entire complex belongs board, and hence Hindus should not be allowed to pray. Very few channels are mentioning this. There was a judgment that came in 1937 where it was told to Deen Muhammad Ahmed that the entire property is not Waqf property, so Hindus can offer prayers. So this is also about a disputed land title deed. It is not just about a place of worship. Okay, Kalimul Hafiz, when there is a dispute, the court can resolve it. When the court steps in to resolve it, how does it become BJP agenda? देखिए, बीजेपी की जो प्रवक्ता जो इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दे रही हैं टीवी पे बैठ के, इनका तो बहुमत है। ये तो अपने उस एक्ट को वापस ले लें, चेंज करा लें। दूसरी बात, इन्हीं की सरकार ने जब 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया, उसमें ये एफिडेविट दिया था कि हम 1991 के एक्ट को फॉलो करेंगे। उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एक्ट है ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। और अब जब हम बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मानिए, तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट को जब मानेंगे तो ये जो सेशन कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अवहेलना कर रहा है। तो ये जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यही तो उसको अपोज करेंगे। कलीमुल हाफिज साहब, ये बताइए कि अगर सच में आप ये कह रहे हैं कि जो कल्याण सिंह की सरकार में हुआ वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में होने वाला है, तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर ही क्यों लगाना? अगर आप ये कह रहे हैं कि ये वही करने वाले हैं, तो फिर कोर्ट जाने की जहमत क्यों उठाते? हाँ, नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात कि अगर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद ना हुई होती तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ये कहीं से साबित नहीं होता कि ये बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई। तो जब एक मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर झूठ बोल सकता है, तो अब ये तो बाबा बुलडोजर हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कब क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम माइनॉरिटी है, हमें तो ये मेजोरिटी में है। अच्छा, सत्ता के नशे में चूर है। बताइए कलीमुल हाफिज साहब, सीधा सवाल आपसे, खिलाफ ये कहलाने जंग कर रखा है।
397 6 SCC पेज 606 पैरा 1 जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है जिसमें कहा गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ या ना? अरे जैन साहब इतना चीखने की क्या जरूरत है? आप नहीं बताइए हाँ या ना? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? में हम बोल लेंगे। नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे बताइए। जबरदस्ती मनवा लेंगे मुसलमानों से। हमें पद्मजा जी की बात के जवाब मार के मनवा लेंगे। अरे कोर्ट से पूछ रहे हैं सर। गोली मार के मनवा लेंगे। पद्मजा जी आप सवाल कर रहे हैं, आप उनको कवर फायर क्यों दे रहे हैं? कलीमुल हाफिज साहब का सवाल है। मैं तो कह रहा हूं मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वापी मस्जिद जवाब के मनवा से दीजिए। आप तो सब कुछ कर लेंगे। मैं तो चुप बैठा। एक सेकंड, you know if you're talking about BJP RSS agenda, let me actually tell you कि जो सर्वे को अपहोल्ड किया गया है ना कलीमुल हाफिज साहब, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो सिंगल जज बेंच थी और उसके जज का नाम पता है आपको? किन्होंने दिया था ऑर्डर? उनका नाम है जस्टिस जहांगीर जमशेद मुनीर। तो अगर हर कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोर्ट एडवोकेट, आपका जो सेशंस कोर्ट है, अगर हर कोई बीजेपी का एजेंट है तो आप जस्टिस जे मुनीर को भी बीजेपी का ही एजेंट बता रहे हैं कलीमुल हाफिज साहब। नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूं। उन्होंने जो जजमेंट दिया उसको पूरा पढ़िए। उसमें ये कहीं नहीं है कि इनको ये इस बात का इख्तियार मिल जाता है कि 1991 के एक्ट का उल्लंघन करेंगे। उन्होंने बिल्कुल ये कहा है सर। आप एक बात बताइए, आप ये सारे चैनल पिछले कई दिन से दिखा रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। मैडम, द कोर्ट हैज अ डिस्क्रेशन टू ऑर्डर लोकल इन्वेस्टिगेशन even though it is not bound to order it. In all cases, a commission for local inspection can well be issued for local inspection. जस्टिस जमशेद जहांगीर मुनीर ने अपने जजमेंट में साफ कहा है, हम सर्वे कराएंगे क्योंकि हमें हक है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। बताइए कलीमुल हाफिज साहब। अच्छा, आप सुनिए आप बात। आप लोग जो ये कह रहे हैं कि ये जो आप लोग जो अभी आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि साहब सर्वे को रोक दिया गया। मैं आपको एक बात बता दूं, सर्वे दोनों दिन हुआ। इवन कोर्ट गई जब इंतजामिया कमेटी, तब भी वो सर्वे चलता रहा। जब कोर्ट से डिसीजन लिया है सर्वे रुकवाने का, तब भी वो बोले 4:30 बजे तक के हम अपनी कार्रवाई कर चुके। उसके बाद भी इंतजामिया कमेटी अपना एक जो संवैधानिक राइट है उसको लेकर कोर्ट गई और कोर्ट ने उसे सुना और कोर्ट ने फिर कोर्ट में जो फिर उसने फैसला दिया, जरा इन्हें चुपवा दीजिए तो मैं बात कह सकूं। और कोई स्टे नहीं लाया आपके वकील, नहीं, नो स्टे। अरे उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, हमने क्लैरिफिकेशन मांगा और आपके ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने सुन के आज ही ऑर्डर पास किया। ओके, संजू वर्मा वांट्स टू रिस्पोंड टू कलीमुल हाफिज साहब। इनको थोड़ा बैरिस्टर साहब से अपनी बात पूरी करो। आप अपने फैक्ट्स अच्छे से फैक्ट्स पढ़ के आइए सर। एक सेकंड संजू वर्मा, सुना Sanju Verma, I want to ask you a specific question. Today you have the AIMIM, Maulana Sajid Rashidi and Shoaib Jamai saying, आपने 1991 में भी एक assurance दिया था, आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, सबको पता है क्या हुआ। आज 2022 में क्या भरोसा है that you will follow the court's order and the law of the land? You know, Padmaja, first and foremost, you know, I don't want to be accountable here to any of the Maulanas or Maulvis. I will answer your question. The fact of the matter is that the BJP, and I say even 99.9% of the Hindu community believes the law of the land, but 99.9% of the Muslim community, I mean the radical Islamists, only believe the law of the land if it suits their narrative. If it does not suit them, they call the constitution fascist. ये क्या हिंदू मुस्लिम आप कर रही हो? No, what is this हिंदू मुस्लिम? कौन सा संविधान मानते हैं आप? Your minister has said on the record in Karnataka that you came to change the constitution, the very constitution of India. No any Muslim has said that. No any Muslim leader has said that we will come to the power to change the constitution. But your BJP minister Hegde has said on record that you will change the constitution. और यहाँ आप बात करते हैं मुसलमान नहीं मानता। अरे मुसलमान कौन सा नहीं मानता? अयोध्या में फैसला आया तो मुसलमानों ने माना। अरे आप संविधान की जवाब दीजिए। आप संविधान के पिछले जिम्मेदार नहीं है। आप लोग संविधान की इज्जत नहीं करते। आप धज्जियां उड़ा आप इसे हिंदू You have not followed the judgment of Supreme Court.
Sir, just a second. Let's not bring in Sabrimala. In the case of Sabrimala, sir, just a second. In the case of Sabrimala, women were assisted by the state government and they went in to the temple, and the rule was followed till the time that it was eventually stayed by another court. That being said, that was wrong, and to block a survey is wrong. And now when the survey has been ordered by court, to try and fearmonger and say that this is a communal dog whistle is to do injustice to our country, its courts and its constitution. Thank you very much, all gentlemen and Sanju Verma, for joining me. Let's go